There cannot be a different strategy for June, July and August. Day 1 is just as important as day 80. एक मिनट भी नहीं मिलेगा वहां पे, because you would have the temptation to start writing as soon as you see the question. Content as it is answers में fit नहीं होता means में. इस लेवल का कंटेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इस फॉर्म में लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाउ टू यूज राइट स्मार्ट, देयर आर टू थिंग्स हियर. वन इज दिस स्किल कि मुझे क्वेश्चन देखते ही आंसर राइटिंग आ जाती है समझ. दिस इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी लर्नड, दिस इज नॉट ऑटोमेटिक. एक पर्पस के साथ जाना लाइव आंसर राइटिंग सेशन में कि मुझे टाइम लिमिट में आंसर लिखना है. अब अगर आपने ये आंसर एक बार पढ़ा हुआ है राइट स्मार्ट का, आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर लिखने जाओ, आप ऑटोमेटिकली बेटर मार्क्स स्कोर कर पाओगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. प्लीज गेट अ नोटबुक आउट एंड प्लीज राइट व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड मोर इंपॉर्टेंटली इम्बाइब व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है. देयर आर हार्डली 80 days for means. This time is not sufficient by any stretch of the imagination to prepare for means. ये बहुत कम टाइम है. So the performance that you need is going to be extraordinary and you need to have that spirit in your head. जो भी आपको खुशी है प्रीलिम्स क्लियर करने की, अच्छे मार्क्स लाने की, लकी होने की, सब बंद कर दो. You are now in the most difficult, most competitive, most tough period of your life, and if you make these 80 days count, the rest of your life is actually sorted. लाइफ में आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि बस अभी पढ़ लो उसके बाद फिर सब चले. Academically at least, this is the last time you need to do this exercise. If you do it well in these 80 days, इसके बाद if you give a good means, you are almost assured of a name in the list. Rank is decided by interview, name in the list is decided by means, right? तो आप टेक्निकली अपने आप को सिविल सर्विसेज में कंफर्म कर सकते हो ओवर द नेक्स्ट 80 days. So leave everything aside. This is the most important period of your life, and therefore with that seriousness, let us now discuss first a strategy for means 2026. This is the broad idea I want you to keep. जो भी questions आपके दिमाग में आ रहे होंगे, in my head at least I have incorporated all of that. मैंने almost सब कुछ incorporate कर दिया है. इसके बाद भी कुछ बचेगा तो I'll take your questions and comments. Okay? Let's get started. सबसे पहला पॉइंट है ये लिख लो अपनी टेबल पे, अपने सामने, अपने दिमाग में incorporate कर लो, imbibe कर लो. Please do not waste the next 10 days. In 10 days, you could technically finish one paper of the GS easily. Right? From this point forward, there should be no discussion of how the prelims was, what is going to be the cutoff, what is the change in the answer key that might happen, what are other people saying, how much are other people scoring. Forget that discussion. Even if you have a borderline score, let's say your score is 75. 75 is almost sure to get through, but yes, might be some changes in the answer key, some factors. सब भूल जाओ, 10 दिन की बात है. बट अगर ये 10 दिन आपने वेस्ट कर दिए तो आप डेफिनेटली मेंस में पीछे हो लोगों से. आई टेल यू माई स्टोरी ऑफ मेंस 2021. 2021 was my first attempt. That year the prelims cutoff was 88. I got 115 in GS, बट मैं CSAT में 10-12 नंबर से क्लियर कर रहा था एज पर द कोचिंग कीज. तब तो यूपीएससी की आती नहीं थी. सो आई वेस्टेड 7 days in this discussion, feeling happy that I have cleared prelims in my first attempt with such a good score, etc. etc. When we ultimately got to the mains, I regretted these 7 days that I wasted so much, because end में एक एक मिनट की वैल्यू आपको समझ आएगी. So fight till the end and fight on every day and stop thinking about prelims now. जो भी सोचना है रिजल्ट के बाद सोच लेना. क्लियर हो गया तो वैसे मत सोचना, नहीं हुआ तो तब देख लेंगे. For now, stop this discussion absolutely completely. ठीक है, आगे चलते हैं. सेकेंड पॉइंट, revisions. How and when to start answer writing, role of thinking, role of PYQs, time management, number of tests you need to give, optional GS में फर्क, breadth and depth of one topic, ये सारी बातें हम आज करेंगे. For this, and then I'll explain to you whatever we are going to do in MP Plus ताकि आपको आइडिया रहे. For this, what I want you to do is I want you to experience the mains with me once. So I'll just open one question randomly. ठीक है, चलो, look at question number 18. Let's look at question number 18, and you have to solve this question in 11 minutes on the actual day.
इसके बाद आपको 2 और क्वेश्चन करने होंगे। इससे पहले आपने क्वेश्चन लिख चुके होगे, आप प्रॉब्ली 7 क्वेश्चंस लिख चुके होगे अगर आप 15 मार्कर्स पहले सॉल्व करो तो। 11 मिनट्स में करना है। क्वेश्चन आसान नहीं है। मैक्सिमम 1 मिनट यू हैव टू थिंक। आई विल गिव यू 1 मिनट, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। If somebody does better than you here, they get 2 marks more. If they get 2 marks more, they get a much better rank than you. The difference between you actually going to the interview stage and not going to the interview stage could be this question. You now only have 45 seconds. Tell me the meaning of this question. What you will write? क्या क्या दिमाग में आ रहा है? 40 seconds left. Your entire career is dependent on this one question. Time कम है, खत्म होने वाला है टाइम। आगे भी 2 क्वेश्चन है, इसके बाद 10 मार्कर्स भी लिखने हैं। बारिश हो रही है बाहर, you're sweating, your hands are shaking. लिखना स्टार्ट करने की जल्दी है, 3 पेज भरने भी हैं। डायग्राम कहां बनाओगे? वैल्यू एडिशन कहां करोगे? इंट्रो में क्या लिखोगे? मुझे तो कोई फैक्ट्स भी नहीं पता इसके हिसाब से। इंडियन एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं, गलती से ग्लोबल मत लिख देना। एंड जस्ट लाइक दैट 1 मिनट इज ओवर। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? ये होने वाला है मेंस में। जो बातें मैं आपको बोल रहा था, जो मैं प्रेशर आप पे बिल्ड कर रहा था, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी मेंस वाले दिन। यू विल हैव ऑल ऑफ दैट फीलिंग। ये 1 मिनट भी नहीं मिलेगा वहां पे, बिकॉज यू वुड हैव द टेम्पटेशन टू स्टार्ट राइटिंग एज सून एज यू सी द क्वेश्चन। You would already be behind on time by the time you reach here. What did you learn from this? क्या सीखा आपने इस एक्सरसाइज से? You need to think fast. It's not about writing fast. You need to think fast. What else? जितना जल्दी सोच सकते हैं उतनी जल्दी सोचना है। और क्या? कंटेंट याद नहीं आता वहां पर। Whatever content you read needs to be by heart. Logic works, your knowledge works, but you will not see direct questions. You will see a broad knowledge आपके पास होगी और आपको क्वेश्चन में उसको फिट करना है, right? And you need to be structured. Somebody who has a faster thinking has an advantage. This was one question. You are going to face 80 questions like this in GS alone. If somebody does just half a mark better than you in each of those questions, they are 40 marks ahead. 40 marks is an unassailable gap in mains. समझ आ रही है ये बात? Are you able to understand this? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? How do you account for growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate with Indian experience. एक तरफ तो हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, फिर भी आप देख रहे हो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस चीज को इलस्ट्रेट करिए। ये कॉनंड्रम कैसे है सोसाइटी में आज की डेट में भी। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, एंड आई सॉ दैट इन द चैट, कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आई। अगर ये समझ नहीं आई तो वी आर बिहाइंड others, even if we have read more. I keep emphasizing on thinking when we talk about mains. आपको thinking का मतलब और reason समझ आ रहा है? Are you able to understand why thinking is important just by looking at this one question? एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। Again you have 1 minute. ठीक है, same pressure. Solve this. I'm keeping the chat open. जैसे ही दिमाग में आने लग जाए बताने लग जाना। Question 20. Already 5 seconds are gone. लिखना भी स्टार्ट करना है, जल्दी करो। बताओ। You have 45 seconds. Solve this question. इसके बाद 10 मार्कर्स भी हैं यार, जल्दी से लिखना स्टार्ट करता हूं। 3 पेज हैं। ट्राइब्स का तो डेटा याद ही नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में शायद एंथ्रो वालों को एडवांटेज हो जाए। As quickly as possible. Done. Time is up. Now understand one thing. एक चीज समझो अब। This question was an even tougher question. They are asking
that is it that tribal development in India centers around two axes, displacement and rehabilitation? कि ट्राइबल डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है उसमें एक तरफ तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है और उनकी फिर रिहैबिलिटेशन हो रही है, और यही ट्राइबल डेवलपमेंट का इंडिया में मेट्रिक है। क्या ऐसा है? इज इट दैट इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, या और भी कुछ है? अ लॉट ऑफ यू मिस्ड आउट द एस्पेक्ट ऑफ डज। Is it that, do you think that in India tribal development only revolves around displacement and rehabilitation, or there are other things as well? Is there a Forest Rights Act as well where we have given them homes within the forests? Have we incorporated tribal interests with environment and ecology, or is it only displacement and rehabilitation? Question आसान नहीं है बिल्कुल भी, and in 1 minute in pressure when you have to write this it becomes extremely difficult. So again I'm telling you, I'm not scaring you, I'm telling you the next 80 days of your life matter a lot. बहुत मुश्किल है ये चीज वहां पर रिप्रोड्यूस करना. If you don't understand the question you are out, if you don't recall content you are out. तो अगले 80 डेज को यूजफुल बनाना है. थोड़ा आप लोगों को समझ आया कि मेंस में आपके साथ क्या होगा? Are you able to understand what is going to happen in mains? You're not going to find this answer as it is anywhere. अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. अब आपको स्ट्रैटेजी भी समझ आएगी कि फिर आपको क्या करना है. राइट? आई नो इट्स स्कैरी, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट इट वॉज इंपॉर्टेंट टू टेल यू दिस. राइट? बताने के बाद अगर आपको कोई चीज समझ आ रही है और बताने से पहले अगर डिफरेंस है तो वहां यू विल बी ऑल अलोन. ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप मेंस दे रहे हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन हैव. इट इज द बेस्ट लेवलर. ठीक है? अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि मेंस में क्या करना है हमें. देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ इट कम्स टू कंटेंट, ठीक है, पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं. लेट्स थिंक ऑफ कंटेंट एंड प्लानिंग योर डे. राइट? इससे समझ आ जाएगा. व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन रीड. राइट? एक लेवल से ज्यादा पढ़ के आप अपने आंसर्स इंप्रूव कर लोगे, आप वैल्यू एडिशन कर लोगे, बट कंटेंट एज इट इज आंसर्स में फिट नहीं होता मेंस में. बहुत रेयरली यू विल हैव अ प्री प्लान्ड आंसर and you will see a exact question and it will hit. If that happens, you're very lucky. Content में you need to have broad knowledge. अब क्योंकि content बहुत ज्यादा है, what is useful in means things that you can fit across papers, right? Examples that you can fit across GS subjects. So it would be better if I read things with the required interlinkages. मेरे को सिलेबस के सारे पॉइंट्स तो पढ़ने ही हैं, बट अगर मैं इंटरलिंकेजेस बना लूंगा तो दैट वुड बी बेटर फॉर मी. लेट्स टॉक ऑफ दोज इंटरलिंकेजेस फर्स्ट. ये फर्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मेंस का सिलेबस आज दोबारा खोल के देखना. आई एम श्योर यू आर ऑल सीरियस पीपल, यू हैव सीन मेंस सिलेबस मल्टीपल टाइम्स. ओपन इट वन मोर टाइम एंड सी इट. ठीक है? एक बार दोबारा से ये सिलेबस खोलना. और एक चीज आपको मैं दिखाता हूं. दिस इज वन थिंग यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर प्रेप. ओके, लुक एट दिस. दिस इज फ्रॉम GS3, दिस इज फ्रॉम GS1. GS1 में salient features of world's physical geography, important geophysical phenomena, earthquake, tsunami, volcanic eruptions, cyclones, और यहां पर disaster and disaster management. ये दोनों चीजें साथ में पढ़नी है. क्वेश्चंस भी सेम आते हैं. causes effects of landslides and national landslide risk management strategy 2021 में GS3 में, 2021 में GS1 में causes of landslides in Himalayan region and western ghats. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, other than the risk management strategy of course, right? You need to link them together. ऐसे बहुत इंटरलिंकेजेस हैं. ये आप देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन GS1, और फूड प्रोसेसिंग में भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन पूछी हुई है यहाँ पे कि लोकेशन कहाँ है. एंड यूड सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की लोकलाइजेशन का क्वेश्चन, दैट इज टेक्निकली अ GS3 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन GS1.
I'll show you multiple examples. Again, environment and geography. Water stress asked in GS1, national watershed project asked in GS3 in the same year. Same year, because it must have been in the news at that point, right? आगे देखते हैं. पोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट कंसोलिडेशन पार्ट जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, ये जो पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का जो हम इग्नोर करते हैं, इट इज सेम एज लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट. भूदान ग्रामदान मूवमेंट्स लिंक टू लैंड रिफॉर्म्स आस्क्ड इन GS1. In 2023, land reforms asked in GS3. So you can get a land reforms question here. Finances and powers up to local levels in GS2, urbanization in GS1, infrastructure in GS3, all are linked. Why? Because basically what we're talking about here is the governance of cities. आपने cities की governance की बात करनी है तो यहां पर infra भी important है, यहां पर इनके social aspects भी important है और यहां पर इनकी governance भी important है. This is GS2, this is GS1, this is GS3. So if these things are studied together, you will have a broad range of examples. If questions are random, you will be able to get content across papers, right? अब ये देखो, welfare schemes for vulnerable sections, performance of these schemes, role of women and social empowerment. These are again linked topics. And I've shown you here questions also that have been similar from these topics. तो ये जो PDF है जिसमें ये सारी चीजें हैं, I will be uploading on your portal. Read this today. इसमें सारे इंटरलिंकेजेस हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन चार्टर इन GS4, कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन चार्टर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन GS2, राइट? एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इफेक्टिवली सेम थिंग, GS4 एंड GS2, राइट? आप इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के रिलेशन पढ़ोगे इन GS2 फॉर IR, साथ में आप बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ोगे मेरे साथ GS3 में, राइट? दे आर द सेम थिंग. When you get a question on Pakistan and China, you have to write about the border issue. When you get a question specifically on border management with China, you have to write the broader IR context. Correct? तो सबसे पहले ये PPT देखो, इसमें जो ये चीजें लिखी हैं, ये अपने साथ लिख लो. I have uploaded this on your portal. It will be visible as soon as this session is over. Look at this PPT and ensure that you establish interlinkages. उसके बाद आज बैठ के एक बार सिलेबस दोबारा देखना and see what interlinkages you can find. ये वो हैं जो मुझे मिली हैं, राइट? आई एम श्योर देयर आर मोर. आप अपने साइड से सोचोगे आपको बेटर लगेगा. फर्स्ट फाइंड दीज इंटरलिंकेजेस, देन लेट्स से आपको इंटरलिंकेजेस मिल गई. व्हाट डज दैट मीन? आप सारे टॉपिक साथ में नहीं पढ़ पाओगे. ऐसा नहीं होगा कि आप अर्बनाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में पढ़ लोगे. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. बट लेट्स से व्हेन यू आर रीडिंग GS3 and you come to infrastructure and you know that it is linked to urbanization and it is linked to local governance. तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हो GS3 में, अगर GS1 GS2 हो चुका है तो इनकी रिवीजन साथ में कर लो. Your points will get consolidated in your head. In the exam it will help a lot. पहली चीज about content is interlinkages. Second thing about content is ये कितनी डेप्थ में एक टॉपिक पढ़ें. अब सिलेबस में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन, राइट? देयर इज अ टॉपिक इन द सिलेबस कॉल्ड अर्बनाइजेशन. अब मैं कितनी डेप्थ में अर्बनाइजेशन पढ़ूं, ये बात मुझे कैसे समझ आएगी कि कितना पढ़ना है? इसी से मैं लिंक करके आपको बताऊंगा कि आपको अपने नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है. इवन दो इन MMP प्लस वी आर गिविंग यू नोट्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज के नोट्स हम आपको देंगे, फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने नोट्स बनाओ. अगर टाइम है तो मेरे YouTube चैनल पे रैंक 32 उत्कर्ष की वीडियो देखना ऑन नोट मेकिंग. फर्स्ट अटेम्प्ट इन मेंस, एज इन सेकेंड अटेम्प्ट इन UPSC, फर्स्ट मेंस रैंक 32, राइट? एक बार देखना उसकी वीडियो. He has written just one test, but written various answers, followed right smart. आपको वीडियो में सब दिख जाएगा, राइट? वो उसकी स्ट्रैटेजी में जो बेस्ट चीज मुझे लगी थी वो उसके नोट्स थे. उनके नोट्स की वीडियो जरूर देखना, 10 मिनट की वीडियो है. अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं. मान लो मुझे अर्बनाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? तो मैं क्या करूं अब? आई विल शो यू माय नोट्स फ्रॉम माय मेंस. ओके, ये मेरे अर्बनाइजेशन के नोट्स हैं. हैंड रिटन है, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी. देखो क्या किया गया है यहाँ पे. पहली चीज करी गई है यहाँ पे, GS1 और GS3 के PYQ सारे साथ में लिख दिए.
जितने पीवाईक्यूज आए हैं मैंने साथ में लिख दिए, राइट। बाद में समझ आया मुझे कि यार GS2 वाले भी लिख लेता, राइट। ये नोट्स कब बने हैं? 2022 मीन से पहले। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन लाइफ, ये कोई पीवाईक्यू आया होगा, ईयर वीयर नहीं लिखा है, कीवर्ड्स लिखे हैं। दिस क्वेश्चन गॉट रिपीटेड इन 2025। दे आस्क्ड स्मार्ट सिटीज इन 2025, आई थिंक इन GS1 ओनली। एक बार देख लेते हैं, तो GS1 में पूछा था या GS3 में? अब ये पीवाईक्यू था, ये नोट 2022 से पहले के हैं, टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं पहले भी, इफ यू वांट टू चेक द डेट। आई थिंक दे आस्क्ड स्मार्ट सिटीज इवन लास्ट ईयर। Look at this, question 8. Smart city, urban poverty and distributive justice. Right? अब ये क्यों हो पाया ये? Why was I already aware that smart cities is an important topic even 4 years before the mains had happened? Because I had written all the PYQs. What I should have done, see, I've written smart cities, relevance and urbanization. Smart cities, will it increase rural urban difference? Smart cities and smart villages in case of Pura and urban schemes. अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन कभी आया होगा। वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज, ये सबसे पहले लिस्ट करना है। तो व्हाट यू नीड इज अ लिस्ट विच हैज ऑल अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकंड स्टेप, पढ़ने से पहले करना है ये काम। आई विल राइट इट इन 1 पेज, ओके, ताकि आप याद रख सको। इस स्लाइड पे सब कुछ लिख लेते हैं। फर्स्ट जॉब, रीड द सिलेबस। पढ़ना स्टार्ट मत करो, स्ट्रैटेजी ठीक करो पहले, है ना। सिलेबस रीड करो, एस्टैब्लिश द इंटरलिंकेजेस, कि यार कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है साथ में करनी है। एंड डोंट जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव गिवन यू, पीपीटी तो मैं दे ही दूंगा, डोंट फॉलो ओनली व्हाट आई हैव गिवन यू, रीड द सिलेबस एक्चुअली, फाइंड योर ओन इंटरलिंकेजेस, कि मुझे ये चीजें साथ में होती हुई दिख रही हैं। सेकेंड थिंग, वंस दिस इज डन, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एटलीस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ दीज। एक बार ही रीड करके कुछ नहीं होगा, जब कोई एक टॉपिक स्टार्ट करोगे पीवाईक्यूज की लिस्ट होनी चाहिए। वेबसाइट पे अपलोड कराता हूं, आपकी पोर्टल पे अपलोड कराता हूं, GS1, 2, 3 एंड 4 सारे अपडेटेड पीवाईक्यूज के साथ आज शाम तक आपको मिल जाएगी। 1, 2, 3 तो मैंने कर लिया है, 4 का भी मैं अभी करके आपको दे देता हूं। ऑल अपडेटेड पीवाईक्यूज फॉर GS1, 2, 3, 4, ठीक है। पीवाईक्यूज की लिस्ट देखो। अब मैंने अर्बनाइजेशन पढ़ना है, मैंने पीवाईक्यूज की लिस्ट देखी, एंड डोंट कंट्रोल एफ द लिस्ट टू लुक फॉर द वर्ड अर्बन, रीड द पीवाईक्यूज वंस। लैंग्वेज जब अपनी आंखों के सामने से निकलती है ना, तो चीजें समझ आती हैं। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज लिस्ट कर लो। अब यहां पे एक चीज लिखी है, ब्रेक ऑफ बल्क टाउन्स, राइट। मुझे भी नहीं पता, जब मैंने पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, मे बी आई फॉरगॉटन नाउ, बट दिस इज अ ग्रेट कीवर्ड, राइट। दिस कैन बी यूज नाउ। क्वेश्चन पहले आया होगा बट अब यूज किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्पीडी अर्बनाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसे करके एक जगह पर लिख लो। सिटीज एज IT हब्स, अर्बन फ्लडिंग, और मैंने यहां पर देखो नेचुरल लिंकेज भी लिखी हुई है। दीज आर द एग्जैक्ट नोट्स आई हैड इन 2022, राइट। ये कर लिया। अब स्टार्ट किया नोट्स बनाना। अब मैंने क्या लिखा, अभी भी मैंने अपने साइड से कोई कंटेंट या नोट्स नहीं बनाए हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं अपने दिमाग को कि मैं क्या क्या लिखूंगा। यार अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अर्बनिज्म क्या होता है, एसोसिएटेड फिनोमिना क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सोशल इफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, एसोसिएटेड टॉपिक्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, मास रैपिड ट्रांजिट। ये कहां से आया ये सब कुछ? पीवाईक्यूज देखने के बाद समझ आया कि ये टॉपिक्स पे एक्चुअली क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको मैंने यहीं पे लिस्ट कर लिया। नाउ आई विल स्टार्ट माई नोट्स। यहां पे डेफिनेशन लिखी। नाउ आई हैव वन डेटा पॉइंट, UN स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 41% इंडियंस इन अर्बन एरियाज बाय 2030। अब चाहे क्वेश्चन लोकल गवर्नेंस पे आए, अर्बनाइजेशन पे आए, सिटीज की मैनेजमेंट पे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर सिटीज पे आए, इवन इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आई विल हैव टू राइट दिस, ठीक है। Currently, urban areas have 30% of the population, 60% of the GDP. Rural urban divide पे क्वेश्चन आए, this will keep in mind. कंटेंट मैं आपको सारा दे दूंगा, राइट। एंड मैं आपको बता रहा हूं इससे बेटर कंटेंट नहीं है मेंस का जो हम आपको देने वाले हैं। यूजिंग इट विल बी द रियल चैलेंज। नाउ व्हेन यू सी अ स्टैट लाइक दिस, थिंक, जब सिलेबस पढ़ लोगे, इंटरलिंकेजेस पढ़ लोगे, आई शो यू अ स्टैट लाइक दिस,
यू शुड इमीडिएटली थिंक इन योर हेड विदाउट लुकिंग एट द सिलेबस कि यार मैं इसको कहां कहां यूज कर सकता हूं. एंड इफ यू हैव डन दिस थॉट प्रोसेस इन योर हेड, अगर आपने दिमाग में एक बार सोच लिया तो एग्जाम में निकल के आएगा. नाउ थिंक द क्वेश्चन दैट यू सॉ ऑन फास्ट फूड, इवन दिस कुड हैव बीन यूज्ड देयर, राइट? ये उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है. मुझे नहीं पता था फास्ट फूड वाला क्वेश्चन आएगा, बट ये स्टैट वहां पर बढ़िया है ना, ये स्टैट भी वहां पर बढ़िया है ना, और ये कहां कहां यूज हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक? ठीक है, डरो मत, यू नीड टू नो. मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, यू नीड टू नो दिस. ये जानना जरूरी है, तभी हम कर पाएंगे ना यार. आगे देखते हैं, अर्बनिज्म के कुछ फिनोमिना लिखे. अब नोट्स जब अपने बनाने हैं तो सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं, सिर्फ कीवर्ड. और अपनी हैंडराइटिंग में बनाना, किसी और के कॉपी नहीं करोगे तो बेटर रहेगा. कॉम्प्लेक्स डीओएल, दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर. अब अगर मुझे पॉइंट लिखना हो, मैं इस पे 2 और पॉइंट लिख सकता हूं, राइट? इम्पर्सनैलिटी, हेट्रोजेनिटी, इंडिविजुअलिज्म, मटीरियलिज्म. ठीक है, आई कैन राइट वेरियस पॉइंट्स इसके ऊपर भी, बट ओनली द कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ओनली द कीवर्ड्स इन योर नोट्स. छोटे नोट्स बनेंगे, ये भी थोड़े बड़े हैं, ज्यादा स्पेस दे रखी है. कैसे आगे थोड़ा दिखाऊंगा तो और समझ आएगा आपको. ठीक है, यहां पर ओवर अर्बनाइजेशन की बात करी, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करी. अब ये देखो, सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, मल्टीपल टाइम्स, कि अर्बनाइजेशन से क्या सोशल फिनोमेना हो रहा है वगैरह. नाउ यू विल सी द रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन योर प्रिपरेशन. ये आपको राइट स्मार्ट से आएगा, अभी बताऊंगा उसको कैसे करना है. सोशल चीजें कहां कहां इंपैक्ट कर सकती हैं? फैमिली को कर सकती हैं, तो फैमिली पे इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. अब ये हम राइट स्मार्ट में पढ़ते हैं कि फैमिली जैसे ही वर्ड आया तो आपके दिमाग में 3 वर्ड्स आने चाहिए: स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस. फैमिली वर्ड सोचते ही ये 3 वर्ड सोचने हैं. ये सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं, एंथ्रो में पढ़ाते हैं, बट जीएस में करने के लिए इससे पॉइंट्स निकलते हैं. नाउ अर्बनाइजेशन ऑन फैमिली, आई थिंक स्ट्रक्चर पे इफेक्ट्स, ब्रेकडाउन ऑन जॉइंट फैमिली, न्यू एमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली. फंक्शनल, फीमेल हेड, लेस रोल इन एजुकेशन, इंक्रीज प्राइवेसी एंड इंडिविजुअलिज्म. इंटरपर्सनल रिलेशंस, impersonal, decrease conceptize, status of women is better. अब इसी से इंपैक्ट, एक पॉइंट बाद में याद आया, नोट्स में ऐड कर लिया, फैमिली बिकम्स यूनिट ऑफ कंजम्पशन नॉट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. डेमोग्राफी चेंजेस, रेजिडेंशियली न्यूक्लियर, फंक्शनली जॉइंट फैमिली. स्ट्रक्चर में एक पॉइंट लिखा है पे न्यू लोकेलिटी. अब फैमिली एंड अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन यहीं से डन हो गया. इतने कीवर्ड्स हैं इसमें, अगर मुझे 50% भी याद रहेगा तो 10 मार्कर में आराम से लिख दूंगा. सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन पे ब्रॉड क्वेश्चन आ गया, तो हाँ, ये फैमिली वाली चीज कि एक चीज है दैट आई विल इनकॉर्पोरेट, बट मेरे दिमाग में अब क्या है, आई हेयर द वर्ड फैमिली एंड आई से स्ट्रक्चर, फंक्शनल और इंटरपर्सनल रिलेशंस. फैमिली सुनते ही अगर 3 पॉइंट बन गए, तो अब चाहे ज्वाइंट फैमिली का क्वेश्चन हो, फैमिलियल, पॉपुलेशन, एजुकेशन का क्वेश्चन हो, सीधा यहां पर ये 3 पॉइंट्स बन गए. इसके और ब्रेकडाउन करके पॉइंट्स बनेंगे कि जब मेरे पास पॉइंट्स कम हैं आई कैन यूज दिस. आगे बात करते हैं. इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स. जो एक्स्ट्रा पढ़े वो यहां पर लिख लिया, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ठीक है. इफेक्ट ऑन कास्ट, इफेक्ट ऑन विमेन. सोशल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन आएगा तो कास्ट, विमेन, इंडिविजुअल्स और फैमिली में मेरे पास पॉइंट्स हैं. अगर इन पे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास पॉइंट्स हैं, और सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं. आइडियली मुझे लिखने ही सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए थे, यहां पर भी कुछ गलतियां हैं, बट सिर्फ कीवर्ड लिखता तो भी काम चलता. अब प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सोल्यूशन, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अब आप यहां देखोगे इंटरलिंकेजेस को यूज करने का तरीका. अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? हैज़ार्ड ग्रोथ, लैकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर अर्बनाइजेशन, एनक्रोचिंग ऑफ वाटर बॉडीज, प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग. ये क्यों लिखा है यहाँ पे? अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले. डिक्लाइन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड, पार्क, फॉरेस्ट, लेक्स. अब एग्जाम्पल, बेंगलुरु वॉज अर्लियर सिटी ऑफ लेक्स, नाउ हार्डली 11 लेक्स आर लेफ्ट. अब ये केस स्टडी की तरह यूज करूंगा मैं. आंसर में ऐसे नहीं दिखाऊंगा एग्जामिनर को, आंसर में एग्जामिनर को दिखाऊंगा, सर ये देखो ये पेज है, यहाँ पे केस स्टडी बैंगलोर
और फिर यहाँ पे 3 लाइन लिखूंगा ताकि एग्जामिनर को इंप्रेसिव लगे, बट इंफॉर्मेशन तो इतनी है। अब ये प्रॉब्लम समझ आ रही है ना, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, उस पे कुछ पॉइंट्स, सोल्यूशन सामने लिखो ताकि दिमाग में याद रहे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम लिख के खत्म कर दूंगा। दैट विल नेवर हैपन, राइट? Whenever I write a problem, I will write a solution. I have to write a solution. तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम लिखते ही मैं कैस्केडेड प्लानिंग की सोल्यूशन लिखूंगा। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन सोल्यूशन, कैस्केडेड प्लानिंग पढ़ा है ना, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 40 ईयर प्लान्स, लैंड यूज प्लान्स, फ्लोर एरिया रेशियो को फिक्स करते हैं, जोनिंग करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आते हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन में साथ में याद कर रहा हूं, जहां भी मैं ये प्रॉब्लम कोट करूंगा वे फॉरवर्ड में मैं कैस्केडिंग प्लानिंग लिखूंगा। आगे बात करते हैं। ये देखो, अर्बनाइजेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। नाउ दिस इज हाउ आई वांट योर नोट्स टू बी। लॉपसाइडेड अर्बनाइजेशन है, फॉल्टी प्लानिंग है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इनएडिक्वेट हाउसिंग है, ये प्रॉब्लम्स है। ध्यान से देखो इन नोट्स को, क्या लिखा है यहां पे कि यार बेसिक प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, राइट, दैट देयर आर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडिक्वेट हाउसिंग लीडिंग टू स्लम्स इन अर्बन एरियाज। सामने ही लिखा हुआ है पीएम आवास योजना और स्मार्ट सिटीज। जहां भी मैं इनएडिक्वेट हाउसिंग और स्लम्स की प्रॉब्लम बताऊंगा मैं पीएम आवास योजना का सोल्यूशन बताऊंगा। जहां भी मैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करूंगा मैं नगर वन स्कीम और मियावाकी स्कीम की बात करूंगा। सामने ही लिखा हुआ है। अब ये नोट्स ओल्ड हो चुके हैं, नाउ इफ यू राइट मियावाकी एवरीबडी नोज इट। 2022 में इट वाज स्टिल रिलेटिवली न्यू, राइट? आगे देखते हैं। इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, क्या इफेक्ट्स होते हैं इन प्रॉब्लम्स के? रीजनल इनइक्वालिटी है, सोल्यूशन सामने है, एम्पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ट्रैफिक स्नॉल्स होते हैं अर्बन एरियाज में, सामने ही सोल्यूशन है, फेम स्कीम, रैपिड ट्रांसपोर्ट। गार्बेज और सीवेज की प्रॉब्लम है, सामने ही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। If I am writing the problem of sewage, I will write waste to energy plants. If I am writing the problem of garbage collection, I will write the empowerment is needed for local self-government at urban levels. वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम में लिखूंगा तो सामने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सोल्यूशन जरूर लिखूंगा। ऐसा तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं ना जो प्रॉब्लम्स पे खत्म होगा, हमेशा वे फॉरवर्ड पूछेंगे। एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा कि हर प्रॉब्लम का स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, राइट? जहां जहां आपको प्रॉब्लम दिखेगी वहां वहां आपको सोल्यूशन दिखेगा, राइट? दिस इज द बेसिक आइडिया। फिर यहां पर कुछ सोल्यूशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन अलग से हैं, वही प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन दिए हुए हैं। अब देखो, मैंने ऊपर कई जगह लिखा था वी नीड टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कई जगह लिखा था। इस पे क्वेश्चन आ गया तो फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरी सबको पता है, उसी में डिवाइड करके लिखा हुआ है कि यार मोनेटाइज लैंड एसेट्स, यूज पीपीपी मॉडल, यूज म्युनिसिपल बॉन्ड्स। इस पे आ गया इस बार क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड पे। फंक्शन में एम्पावरमेंट बाय स्टेट्स, फंक्शनरी में इनको स्किल्ड लोग चाहिए, सिटी कार्डर्स बनाओ। ट्यूलिप इंटर्नशिप होती है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसमें स्किल्ड ग्रेजुएट्स को भेजते हैं विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये एक यूनिक पॉइंट है जो बहुत कम लोग लिख पाएंगे, वहां पे पता बहुतों को होगा, लिखेंगे वहां पे बहुत कम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो, यहाँ लिखा है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द स्केलेटन अप टू स्टेट्स टू गिव फ्लैश। दिस इज अ कंक्लूजन इफ आई एवर सी अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्वेश्चन, राइट? कि यार 74th CAA हैज प्रोवाइडेड स्केलेटन, ये कोई बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई थिंक सेकंड ARC ने बोली हुई है बात कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज गिवन स्केलेटन to the municipal corporations, but it is up to states to provide the flesh. आगे आप गवर्नमेंट स्कीम्स देखोगे, पूरा अर्बन अमृत मिशन, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, बिल्डिंग कोड एंड ग्रीन बिल्डिंग। अब यहां क्यों है? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार आने के चांसेस हैं। दिल्ली में बहुत बात हो रही है कि वसंत कुंज में तो टेम्परेचर कम है, बट जो शादीपुर वाला एरिया है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, बिकॉज अर्बन स्प्रॉल्स आर डिफरेंट। ग्रीनरी जहां पे है वहां पे दिल्ली में हीट वेव कम है, राइट? अब स्मार्ट सिटी मिशन, यहाँ पे सिस्टर सिटी प्रोग्राम। अब ऑल सेक्टर्स एंड चैलेंजेस लिखा हुआ है क्योंकि ये किसी और नोट्स में ऑलरेडी था, तो यहाँ पर एक्सपैंड नहीं किया। सुगम्य भारत अभियान फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, इस बार क्वेश्चन आया इस पे
प्रीलिम्स में, राइट? मेंस की चीजें बहुत काम आती हैं प्रीलिम्स में। नगर वन, मियावाकी टेक्निक, डेटाबेस गवर्नेंस, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। प्रीलिम्स में कहीं पढ़ा होगा, किसी करंट अफेयर्स में कहीं रैंडम पढ़ा होगा, यहां लिख रखा है। पीएम आवास योजना, स्वामी फंड, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज एंड एक बेस्ट प्रैक्टिस ओडिशा जागा मिशन। अब सबको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन लोग कैसे कंक्लूड करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कंक्लूड करते हैं। तो यहां पर क्या किया, 11.3 लिख दिया, राइट? न्यू मॉडल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंटीग्रेट्स ऑल एसडीजीज, प्रमोट्स इक्विटी, वेलफेयर एंड शेयर प्रोस्पेरिटी। यूएन हैबिटेट राइट टू द सिटी पे क्वेश्चन आया था 2021 प्रीलिम्स में, मैंने दिया था 2021 प्रीलिम्स, वो यहां लिख दिया। 11.2, 11.3, 11.1 के स्पेसिफिक टारगेट्स लिख दिए rather than just writing SDG 11। दो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, भुवनेश्वर वन, मैंग्रोव बोर्डवॉक इन पंजी, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया मैंग्रोव पे, और ओडिशा का जागा मिशन। अब मुझे आप कोई भी क्वेश्चन दे दो अर्बनाइजेशन पे, इट माइट नॉट बी डायरेक्ट बट माई कॉन्टेंट इज सॉर्टेड। ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको कंटेंट इस लेवल का चाहिए, इस लेवल का कंटेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इस फॉर्म में लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तभी होगा जब आप इंटरलिंकेजेस करोगे, कंटेंट को पढ़ोगे और उसको ऐसे लिखोगे। एक दिन में नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन इन वन डे। ये फाइनल नोट्स हैं, ये फर्स्ट नोट्स नहीं है, राइट? इसमें आपको थिंकिंग चाहिए, सोचने का तरीका चाहिए। इसीलिए जब मैं अभी आऊंगा मैं आपको बोलूंगा कि राइट स्मार्ट की सारी क्लास लाइव अटेंड करना। मींस में मैं भी नहीं चाहता आप लाइव क्लास अटेंड करो, आप कुछ और लाइव मत अटेंड करना, राइट स्मार्ट जरूर करना, वहां हम यही करते हैं। फॉर एवरीथिंग दैट वी डू, दिस इज व्हाट वी लर्न इन राइट स्मार्ट। एक एक टॉपिक में आपको ये चीज मैं बताऊंगा, ये मेरा काम है, बट आपको इस फॉर्मेट में अपने नोट्स को लाना है। तो ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ टॉपिक्स एंड हाउ द नोट्स नीड टू लुक लाइक, ये भी एक्सपेंसिव है। आइडली ये सब कुछ जो यहाँ लिखा है, आप देख रहे हो स्पेस बहुत ज्यादा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इतने स्पेस की जरूरत नहीं थी। ये सब कुछ आइडली 3 से 4 पेज में फिट होना चाहिए। ये आपने दो काम कर लिए, सिलेबस के इंटरलिंकेजेस लिख लिए, पीवाईक्यूज की लिस्ट बना ली। देन यू कम टू द लेक्चर्स। जो कंटेंट के लेक्चर्स हैं एमएमपी प्लस में, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं कि आपको क्या क्या बिल्कुल अच्छे से देखना है। हमने लेक्चर्स रिकॉर्डेड रखे हैं ताकि आप अपनी पेज पे देख पाएं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सब लोग इनको 1.5x पे देखें, ठीक है? प्लीज वॉच देम एट 1.5x और फास्टर, ठीक है? रिकॉर्ड, अनलेस आपको समझ नहीं आ रही हो कोई बात, राइट? मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाता हूं। GS1 में आपने क्या नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा एस्टिमेट है। आपने नहीं पढ़ा होगा सोसाइटी, आपने नहीं पढ़ा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, आपने नहीं पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट? आपने शायद ना पढ़ा हो एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने शायद ना पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो थोड़ी सी चीजें रह जाती हैं जिसमें प्रीलिम्स की नॉलेज तो है बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, ये मेरा काम है राइट स्मार्ट में। आप मेरे साथ एमैक और मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट कर लोगे, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप मेरे साथ राइट स्मार्ट कर लोगे, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां आपके पास कंटेंट ही मिसिंग है, वो कंटेंट आपको देखना है। आप चाहे सिर्फ नोट्स पढ़ो, जहां समझ ना आए वो लेक्चर देखो, ब्लाइंडली लेक्चर्स मत देखना, स्पेशली इन GS1। ब्रॉडली गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, यहां पर आपकी डिसेंट नॉलेज है। अगर आपके प्रीलिम्स में मार्क्स आए हैं तो ये प्रीलिम्स के टॉपिक हैं। ओनली एक्सेप्शन हियर इज सोसाइटी, सोसाइटी के सारे लेक्चर देखने हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है, अगेन इट्स अप टू यू। इसलिए क्योंकि सोसाइटी आप देखोगे ना, आपको भी क्वेश्चंस दिखाए, दोनों सोसाइटी के थे। सोसाइटी होता जा रहा है टफ, सोसाइटी अब एक्सपर्ट लेवल पे पूछ रहे हैं, वो पहले वो जनरल पूछते थे। इसीलिए वी हैव आस्क्ड प्रणय सर टू टीच। सर सोशियोलॉजी के टीचर हैं, राइट? वी हैव वांटेड टू गिव यू सम लेवल ऑफ स्पेशलाइज्ड कंटेंट, तभी प्रणय सर आपको ये पढ़ा रहे हैं। ये बात समझ आई? अब आते हैं GS2 पे। पहली बात, ये सिर्फ पॉलिटी नहीं है। पॉलिटी इज 45% ऑफ द पेपर, इट इज 9 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ये ट्रेंड मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 सालों से। आपका फोकस अगर यहीं रह गया तो बात नहीं बनेगी, राइट? GS2 लेक्चर्स मैं रेकमेंड करूंगा आप जरूर देखो। ये GS2 लेक्चर्स इस बार काफी बात हुई है एमपुरी सर से, वरुण सर से। ये अज्यूम करके बनाए गए हैं कि आपको लक्ष्मीकांत आती है, लक्ष्मीकांत के एक लेवल ऊपर जाके बनाए गए हैं।
दैट इज द पॉइंट. ठीक है. GS3, अगर आपने मेरे साथ साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट किया है तो इन पार्ट्स के आप सिर्फ नोट देख सकते हो. लेक्चर्स हर चीज के हैं, मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस दे रहा हूं. बाकी रेस्ट ऑल ऑफ इट यू हैव टू वॉच. लास्ट ईयर आई हिट 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस. आई विल ट्राई टू मेंटेन और बेटर दैट परफॉर्मेंस. ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेटर GS3 का कंटेंट आई डोंट थिंक आपको कहीं मिल सकता है. ऑफ कोर्स आई एम बायस्ड सिंस आई एम मेकिंग इट माई सेल्फ, बट आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे एंड टू एंड. ठीक है. एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर अलग से भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड आई ट्राई टू मेक इट एज क्रिस्प एज पॉसिबल. पहले मुझे भी पता है मेरे पे ये थोड़ा क्रिटिसिज्म था कि बड़े नोट्स हैं. आई थिंक अब हैंड रिटन नोट्स हैं 400 पेज के, विच यू हैव टू रीड. हैंड रिटन तो टाइप कर दूं उनको तो 200 पेज के बन जाएंगे, राइट. एंड उसमें से आप ऐसे नोट्स अपने बना सकते हो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके. उसमें डायग्राम्स, वैल्यू एडिशन सब वही है, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है. अब आते हैं GS4 पे. GS4 पीयूष सर कर रहे हैं. इट इज हिज स्टूडेंट्स हु हैव बीन गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स इन एथिक्स अक्रॉस द लास्ट फ्यू इयर्स. मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप लेक्चर्स देखो. ठीक है. अब बात करते हैं एसए की. एसए में हमने कोई कंटेंट क्लास नहीं रखी है, हमने वर्कशॉप रखी है. वी हैव केप्ट वर्कशॉप्स. ये वर्कशॉप्स लाइव हैं. देयर आर 6 वर्कशॉप्स. पहली 1-2 अटेंड करो. जहां आपको लगे मैं कंफर्टेबल हो गया हूं फिर उसको छोड़ देना. ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वी आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, बट ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट में रहोगे. ठीक है. तो इस चीज को ऐसे मैनेज करना है. अब ये तो कंटेंट वाला पार्ट हुआ. यू विल गेट लेक्चर्स ऑफ एवरीथिंग. ये लाइव हैं, ये सारे रिकॉर्डेड हैं. टाइमिंग और डेट्स मैं आपको अभी दिखा दूंगा. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो. यू हैव टू बी मेकिंग द स्ट्रेटेजी एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. दीज आर माई रिकमेंडेशंस टू यू. ठीक है. अब बात करते हैं रोल ऑफ थिंकिंग की, जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था कि थिंकिंग क्या करनी है. दोबारा अगर मैं आपको ये पेपर दिखाऊं जिस पेपर की हम बात कर रहे थे, राइट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. किसी एक ने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. किसी एक ने कहा ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, does not result in aggressive consumer culture, also results in other things. Obviously ये वाला सही है ना. अब अगर किसी ने ज्यादा पढ़ाई भी कर रखी है, somebody has read a lot, but they write this answer like this versus they write this answer like this, there is a clear gap in the answer, right. This is addressing the demand, this is not addressing the demand. This is close to the demand, this is exact answer. Can you differentiate this? Can you differentiate these two answers and understand that this is an appropriate demand based answer, this is not an appropriate demand based answer. ठीक है. And don't feel bad or good about this. ये आज आपका टेस्ट नहीं है, आज आप सीख रहे हो एंड यहां से हमें इंप्रूव करना है. डू यू गेट इट? डिफरेंस दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? एक और चीज, ये थिंकिंग जो है ये करने के लिए पेपर में अराउंड 30 सेकेंड्स मिलते हैं. तो कंटेंट आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको ये थिंकिंग करनी आनी चाहिए. वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क यू एंड प्लीज आंसर जेन्युइनली. आई हैव सो फार डिस्कस्ड 3 क्वेश्चंस विद यू. मैंने पहले आपको 2 क्वेश्चन दिखाए और ये मैं आपको 3rd क्वेश्चन दिखा रहा हूं. इज ऑलरेडी द प्रोसेस फीलिंग जस्ट अ बिट इजियर? पहला क्वेश्चन देख के जो थॉट आया था और ये क्वेश्चन देख के जो थॉट आया है, ऑलरेडी थोड़ी सी एवोल्यूशन हो गई है थिंकिंग में. ऑलरेडी लग रहा है कि यार हाँ ठीक है सीख जाएंगे. एटलीस्ट इज इट फीलिंग डूएबल टू यू कि मेरे को क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा यार. अभी 3 ही किए हैं हमने,
हमने आंसर्स भी डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने आपके साथ अपनी थॉट प्रोसेस भी शेयर नहीं करी है, बट इन जस्ट 3 questions, in just 3 questions almost everybody is saying yes, right? In just 3 questions it is becoming easier for us to think about this. This is the role that is going to be played here by Write Smart. एग्जैक्टली यही पर्पस है. आपने कंटेंट कर लिया, लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप. नाउ आंसर राइटिंग. यहां आपको सबसे पहले थिंकिंग आनी चाहिए, टाइम में आनी चाहिए, डिमांड आइडेंटिफाई आप कर लो, सब पार्ट्स आप बना लो और पॉइंट्स आप सोच लो एंड थोड़ी सी इंटरलिंकिंग कर लो. दिस इज ऑल द जॉब दैट आई हैव टू डू विद यू इन राइट स्मार्ट. वहां पर एग्जैक्टली यही होता है क्लास में जो अभी यहां हो रहा है, एग्जैक्टली लाइक दिस. आप राइट स्मार्ट करो और हम ये प्रोसेस जो हमने अभी 3 क्वेश्चन के लिए करी, हम ये 300 बार करेंगे, 300 टाइम्स across GS 1 2 3 4 essay. When we do this process 300 times, I am sure you will not have this problem anymore, right? GS 1 2 and 3 का राइट स्मार्ट मैं ले रहा हूं, GS 4 एंड essay का राइट स्मार्ट ले रहे हैं पीयूष सर. ठीक है. For those of you who are in MAP, Write Smart is offline, so you can come and write your answers in front of me. क्लास में ऑब्वियसली क्लास में आप बैठोगे, वहां टाइम कंस्ट्रेंट होता है. क्लास के बाद अगर आप वहां पर हो, वील टॉक अबाउट थिंग्स इन डिटेल. ठीक है. दिस इज व्हाट वी सॉल्व इन राइट स्मार्ट. ये सारी चीजें हम राइट स्मार्ट में सॉल्व करते हैं. आपको ये क्लासेस मेरी रिकमेंडेशन है, इनको आपको लाइव अटेंड करना है. सारी क्लासेस को नहीं करना है, GS1 को जरूर करना है. सी आई डोंट टीच GS1 GS2 GS3 सेपरेटली. ये एक स्किल है, राइट? दिस इज अ स्किल. आफ्टर अ पॉइंट यू विल लर्न दिस स्किल. आप GS1 से लाइव देखना स्टार्ट करो. जब एक पॉइंट आ जाए कि यार मैं अब लाइव देख के मैंने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, उसमें मैं क्या करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 3 मिनट सोचने के लिए देता हूं. व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट दैट यस आई हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आ गया, राइट, कि क्या करना है और हाउ क्वेश्चंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन. जिस दिन आपको लगे मेरा स्किल डेवलप हो गया है, लाइव देखना छोड़ देना. अपने ही लेक्चर्स के लिए कह रहा हूं, लाइव देखना छोड़ देना. वो एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस है. फिर आप रिकॉर्डेड देख के उसको कंटेंट के लिए देख सकते हो. हाउ टू यूज राइट स्मार्ट, देयर आर 2 थिंग्स हियर. वन इज दिस स्किल कि मुझे क्वेश्चन देखते ही आंसर राइटिंग आ जाती है समझ कि इसमें डिमांड ये है, ये सब पार्ट्स बनेंगे, ये वाली अप्रोच यूज होगी, ऐसे करके ये आंसर लिखा जाएगा, इंट्रो में ये जाएगा, बॉडी में ये जाएगा, कंक्लूजन में ये जाएगा, ये केस स्टडी, ये डायग्राम में यूज करने वाला हूं. दिस इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी लर्नड. दिस इज नॉट ऑटोमेटिक. अपने आप नहीं आता, ये प्रैक्टिस कर करके आएगा. 300 प्रैक्टिस अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे. मे बी जब आप 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे मेरे साथ और पीयूष सर के साथ, आपको समझ आ जाएगा. जिस दिन समझ आ गया, ये स्किल आपको आ गया है. The second thing we do in Write Smart is the content value addition. ये चीज हमें मिलना मुश्किल होती है. Specific value addition that is derived from previous year questions. एक बार ये स्किल समझ आ जाए और टाइम कम लगे दिन में, तो लाइव नहीं भी देखोगे तो चलेगा. बट कंटेंट वैल्यू एडिशन के लिए जरूर देख लेना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. एक एग्जांपल देता हूं आपको. इस बार 2025 मेंस में क्वेश्चन आया था ऑन, I'll show you 2025 means also, we have it open. ये लास्ट ईयर की राइट स्मार्ट की क्लास है. ठीक है. अब मैं पिक करता हूं कि हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. अब यहां भी अर्बनाइजेशन है, ये मैंने नहीं सोचा था पहले, बट अब मैं अपने अर्बनाइजेशन के नोट्स में जाके इसको अपडेट करूंगा. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. सेकेंड, बेसिकली कंपैरिजन ऑफ मेसोपोटामिया ग्रीस विद इंडस वैली. ये 2015 में पूछा था. देन फॉर 10 years they did not ask a question on IVC. I was not discussing this question on the daily in Write Smart. लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया. अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं. सी 100 years हो गए हैं डिस्कवरी के. यही वैल्यू एडिशन पॉइंट्स ढूंढते हैं ना हम. यहां पर आपको कुछ ऐसे एक डिमांड सप्लाई अप्रोचेस सिखाऊंगा राइट स्मार्ट में.
आपको यहां पर कुछ चीजें मिलेंगी जो जनरली आपको किताबों में नहीं मिलती, राइट? आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस। मैंने एक्चुअली 2-3 AI एजेंट्स बिल्ड कर रखे हैं इसका कंटेंट बनाने के लिए, राइट? ताकि मुझे यूनिक पॉइंट्स मिले, जैसे कि सिटाडेल और लोअर टाउन में जो सेग्रीगेशन थी वो अहमदाबाद स्मार्ट सिटी में भी देखी गई है, राइट? दिस यू कैन फाइंड, दिस यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इजीली। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो को लिंक किया जल शक्ति अभियान और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। ग्रैनरीज को लिंक किया पब्लिक अम्यूनिटीज की प्लानिंग पे, ठीक है? मल्टीपल रूम एंड कोर्टयार्ड वाले हाउसेस को लिंक किया मिडिल इनकम ग्रुप फ्लैट्स इन प्रधानमंत्री आवास योजना। सैनिटेशन को लिंक किया अमृत मिशन से। जो वहां पर थिक वॉल्ड हाउसेस थे उनको लिंक किया नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया से। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को लिंक किया अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर से। जो वाटर सप्लाई धोलावीरा में देखी गई उसको लिंक किया जल जीवन मिशन से। दिस इज डिफिकल्ट टू फाइंड, बट दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस। एक्सपेक्टेड था आईबीसी पे क्वेश्चन सबको, ये कंटेंट बहुत कम लोगों के पास था और फिर यूज और कम लोगों ने किया। दिस इज द एडवांटेज आई ट्राई टू गिव यू। तो मैं अगेन आपको कह रहा था, आप यहां GS1 का पेपर देखो, जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Salient features of Harappan architecture. Easy question, सबको आता है ये, but how many people are establishing the linkages needed? कि मोहनजोदड़ो की स्ट्रीट्स चंडीगढ़ जैसी दिखती हैं, राइट? कितने लोग ये लिंकेज क्रिएट कर पा रहे हैं और ये प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन से लिंक्ड है? यहां पर आंसर बड़ा है देन व्हाट यू कैन राइट। कंक्लूजन भी फ्यूचरिस्टिक एंड कंटेम्पररी स्मार्ट सिटीज मिशन। नोइंग व्हाट यू नो हियर, अब अगर आपने ये आंसर एक बार पढ़ा हुआ है राइट स्मार्ट का, आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर लिखने जाओ, आप ऑटोमेटिकली बेटर मार्क्स स्कोर करोगे। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन द एग्जामिनर रेड, एंड दिस इज वेयर वी क्रिएट अ डिफरेंस। एक एक क्वेश्चन को राइट स्मार्ट के हम हर साल नया लिखते हैं और यहां से हमें कंटेंट का गैप क्रिएट करते हैं, राइट? सो देयर आर टू कंपोनेंट्स टू इट। इट इज नॉट जस्ट स्किल, स्किल एक चीज है, वो थिंकिंग का स्किल है। द सेकेंड वन इज द कंटेंट वैल्यू एडिशन पार्ट। दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल मिस आउट ऑन, कि स्किल आ गया यार, समझ आ गया आंसर राइट कैसे करना है, आगे बढ़ो। नहीं, डू दिस। ये कंटेंट वैल्यू एडिशन करके आपके मार्क्स बेटर आएंगे, राइट? बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 2014-15 का क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ है। आपने अगर आंसर 2014-15 वाला 2014-15 से चेंज नहीं किया है, 10 साल से आपका कंटेंट सेम है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। If you have updated your content to previous year questions, you go and write them, you will get better marks. एक और चीज जो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, इस बार मैंने और बेटर करी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी टॉपिक क्लास इन राइट स्मार्ट, मान लीजिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट किया, मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, लास्ट ईयर से पहले मैं नहीं करता था। आई गिव यू अ वैल्यू एडिशन पेज, करंट अफेयर्स जो उस साल हुए हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, कोट्स दैट यू कुड यूज, राइट? अब जैसे विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, ये कोट देखो कितना यूजेबल कोट है हर जगह। यही चीज हम ढूंढते हैं और यही चीज हमें ढूंढने में मुश्किल होती है कि यार एक जगह पर मिल जाए। आपको राइट स्मार्ट में मिल जाएगा, आपको इसके बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे और चीजें हैं, कोट्स हैं, देन देयर आर सम कीवर्ड्स। यही ढूंढते हैं ना हम, वन वे फ्री ट्रेड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, डिवाइड, यूरोपियनाइज एंड काउंटरपॉइज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने सब सुन रखे होंगे, बट एग्जाम से पहले अगर एक दिन पहले देख लिए तो लिखे जाएंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं लिखे जाएंगे। सो वी डू दिस फॉर एवरी सिंगल राइट स्मार्ट सब्जेक्ट। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का एक राइट स्मार्ट क्लास होगी, यू विल गेट दिस, ठीक है? डन। दूसरी चीज इन आंसर राइटिंग दैट आई वांट यू टू डू इज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, जो हम यहां पर कर रहे हैं। यहां पर सारे न्यू क्वेश्चंस हैं। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? जब टेस्ट सीरीज है हमारे पास, तो ये काम हम क्यों करते हैं? ये काम हम करते हैं टू एक्चुअली राइट क्वेश्चंस इन अ टाइम लिमिट। पहले दिन पे आपको 20 क्वेश्चंस लिखने में दिक्कत होगी। जिस दिन 5 क्वेश्चन आपको लगे मैं टाइम पे लिख पा रहा हूं, यहां पर एक काम है आपका, टाइम पे 5 क्वेश्चन पूरे करना। वरुण सर होते हैं, हिंट्स देते हैं, हेल्प होती है। जब कंफर्ट आ जाए तो इसको आप कह सकते हो कि ठीक है यार, आई हैव डन माय
लॉज इनफ, लेट मी नाउ फोकस ऑन टेस्ट। एक पर्पस के साथ जाना लाइव आंसर राइटिंग सेशन में कि मुझे टाइम लिमिट में आंसर लिखना है, पेन चलाना है, यहां हम सोचेंगे, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि सोचना तो बहुत अच्छा चल रहा है, आंसर नहीं लिखे जा रहे। सो एंड दे आर एब्सोल्युटली सिंक टुगेदर। जैसे मंडे को, कमिंग मंडे आपकी फर्स्ट क्लास है राइट स्मार्ट की ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो ट्यूसडे को आपका लॉज होगा ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यहां आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, यहां आपने न्यू क्वेश्चंस किए। फिर वेंसडे को लेट्स से आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट चीज हो रही है विच इज एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, तो थर्सडे को आपका लॉज होगा ऑफ एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, राइट? ऐसे चलेगा, तो कंप्लीटली सिंक में है। यहां पर आप कंटेंट, यहां पर आप स्किल सीखो, कंटेंट की वैल्यू एडिशन करो, यहां पर आप टाइम लिमिट में आंसर लिखना सीखो, 5 क्वेश्चंस एट वंस यू लर्न द स्किल मूव टू टेस्ट, राइट? अब आते हैं आपकी प्लानिंग पे। देखिए 2-3 बातें करनी है। पहले बात करते हैं एक मंथ वाइज प्लानर की, देन वील टॉक ऑफ अ प्लानर बेस्ड ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू डेली, ठीक है? ड्यूरिंग ईच डे, every day what I want you to do is simple. You have to dedicate 10 hours to 12 hours on the daily. ये मैं आपसे चाहता हूं। इसमें मैं चाहता हूं एक इक्वल स्प्लिट फॉर जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल। लेट्स से आई वुड से 6 hours are here and 6 hours are here. देखो जान के थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दे रहा हूं, अगर नहीं भी पूरा होता है डिसअपॉइंट मत होना, राइट? टारगेट इज टू गेट टू दिस पॉइंट कि 6 घंटे में रोज जीएस को दे रहा हूं, 6 घंटे में रोज ऑप्शनल को दे रहा हूं, ये टारगेट है। 80 दिन ही है यार, इट इज जस्ट 80 days। शाहरुख खान ने बोला था ना चक दे इंडिया में 70 मिनट, अब मैं आपको बोल रहा हूं ये 80 दिन, ये 80 दिन मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा कैसे पढ़ना है, तुम मुझे बताओगे, ठीक है? यू एग्जीक्यूट दिस फॉर 80 days, यू आर थ्रू। 80 ही डेज हैं बस, यू कैन लिटरली काउंट देम, है ना? अब ये जो जीएस है इसमें आप आंसर राइटिंग को दोगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 hours और बाकी आप स्टडिंग को दोगे अराउंड 4 to 4.5 hours। ये सेम चीज मैं आपको ऑप्शनल में भी रेकमेंड करूंगा कि 2 घंटे तो आप लिखो ऑप्शनल के आंसर रोज, राइट? क्योंकि ये भी अगर आप पीवाईक्यू लिख रहे हो यहां पे और आप पीवाईक्यू लिख रहे हो यहां पर, तो दिस इन इटसेल्फ इज अ लर्निंग प्रोसेस, इससे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड इफ यू आर डूइंग इट एवरी डे, देखो जब आप आंसर लिखोगे ना, यू विल रियलाइज कि यार ये चीजें मैं ज्यादा यूज करता हूं, इस टाइप का डेटा मुझे मिसिंग लगता है, ये चीज मेरे तब दिमाग में नहीं आती। तो दिस प्रोसेस हैज टू बी डन टुगेदर। डू नॉट थिंक आई विल राइट आंसर्स आफ्टर आई हैव स्टडीड। मेंस के लिए स्टडिंग इज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग, राइट? डू नॉट राइट एन आंसर टिल यू हैव नॉट don't wait for writing an answer कि यार अच्छा I will study and write them together। अगर सिलेबस नहीं भी हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं रिवाइज किया है, आ जाओ राइट स्मार्ट में, एक आधा क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा कोई बात नहीं, उसके बाद ज्यादा समझ आएगा। जैसे आप लोगों ने अभी ये क्वेश्चंस देखे है ना, यू जस्ट सॉ दीज क्वेश्चंस। नाउ इफ आई विल आस्क यू रीड ग्लोबलाइजेशन, अब मैं आपको कहूंगा ना ग्लोबलाइजेशन पढ़ो मेंस के लिए, you will read it in much better manner. Why? Because you know what was asked, you know what you required, what you thought। सोचा होगा ना आपने इस क्वेश्चन के बारे में, दिखे होंगे आपको गैप्स, यार ये एक चीज और पता होती तो बहुत अच्छा आंसर लिखता। So now you know what you need। तो ये प्रोसेस साथ में होनी चाहिए, ऑप्शनल में भी और जीएस में भी, कि दिन में 6 घंटे हैं जीएस के लिए, अराउंड 1.5 to 2 hours आई विल राइट। अब ये आपको खुद नहीं करना, ये जो 1.5 to 2 hours हैं यही आपके हैं राइट स्मार्ट और लॉज के आवर्स, और बाकी टाइम ये स्टडिंग का टाइम है। सिमिलरली 2 hours यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हैं और बाकी टाइम ये स्टडिंग का टाइम है। आई एम अज्यूमिंग दैट देयर वुड बी सम पार्ट्स इन मेंस जो आपने पढ़ लिए होंगे, तब से मैं बोल रहा हूं मेंस रेडी बाय दिसंबर,
कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, कुछ पार्ट्स तो होंगे मेंस के जो पढ़ रखे हैं, राइट। वॉट एवर पार्ट्स ऑफ मेंस यू हैव स्टडीड, जो नोट्स बने हुए हैं उनको यूज करो, डिस्कार्ड मत करना। जो पुराने नोट्स हैं उनको जरूर यूज करो, चाहे सारथी से हो चाहे कहीं से भी हो, जरूर यूज करो उनको। डू नॉट डिस्कार्ड देम, काम आएंगे। लुक एट देम अगेन एंड रेफर टू देम अगेन। एंड लेट्स से आपने GS3 पहले किया हुआ है, मेरे से किया है, कहीं से भी किया है, आपने किया हुआ है, जब आपके मंथली प्लानर में GS3 का टाइम आएगा उन नोट्स को यूज करना, अपना टाइम बचाना। फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड यू विल ऑलवेज 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 हैव अ पॉसिटिव ऑफ टाइम। सो जितना हो सके अपना टाइम बचाना, ठीक है। बट डोंट टेक शॉर्टकट्स, किसी और के नोट्स उठा के डायरेक्टली कॉपी कर लेना, टॉपर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, ये सब काम मत करना। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना। बट हाँ, जहां टाइम बच सकता है कि यार ये एफर्ट पहले मैंने ही किया हुआ है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नाउ विद दिस डेली शेड्यूल इन माइंड, लेट्स लुक एट अ मंथ वाइज प्लानर कि यार अब मंथ बाय मंथ हमें क्या करना है। ये प्लानर भी मैं आपके साइड अपलोड कर रहा हूं। दिस इज हाउ MMP प्लस विल रन, ठीक है। आज मंडे है 1 जून, आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप आज से GS1 के कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यू हैव जस्ट 1 वीक टू कंप्लीट GS1 कंटेंट, ठीक है। सारा तो आप पढ़ोगे नहीं। अगेन अब मेरी रिकमेंडेशंस आप याद करो। आई गेव यू द रिकमेंडेशंस विद अ स्पेसिफिक थिंग इन माइंड, लिख सकते हो चाहो इसको तो। सोसाइटी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल और फिजिकल ज्योग्राफी आपको ऑलरेडी आता है, दोबारा से नए नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। नोट्स हैं, लेक्चर्स भी हैं पोर्टल पे, सारे हैं। डोंट पिक देम अप अगेन, रीड व्हाट यू हैव रेड बिफोर। एंशिएंट मिडिवल मान लो छोड़ के गए थे इस प्रीलिम्स में, उसके बाद भी वैसे प्रीलिम्स हो रहा है तो मैं सल्यूट टू यू। बट अगर मान लो आप बिल्कुल छोड़ के गए थे तो नोट्स पढ़ लेना, जहां समझ नहीं आए वहां लेक्चर देख लेना, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 वीक। इस 1 वीक में आपकी टॉप प्रायोरिटी सोसाइटी होनी चाहिए। दिस शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। अब चलेगा कैसे, इसकी बात करते हैं। आपको ये वीक मिला है GS1 करने के लिए, राइट। टॉप प्रायोरिटी हियर इज सोसाइटी, देन आई वुड से ह्यूमन ज्योग्राफी, देन आई वुड से वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये आप लेक्चर देखिए एंड योर ओल्ड नोट्स फॉर एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, वॉट एवर यू हैव, जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं वो भी चल जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है बस तो स्पेक्ट्रम पढ़ के आ जाओ, आंसर लिखवाना मेरा काम है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। यहां पर कहीं गैप्स हैं, इफ देयर आर सम गैप्स हियर, तो इनको फिर आप हमारे जो नोट्स पोर्टल पे हैं उनसे यूज करो, ठीक है। बट वी हैव जस्ट 1 वीक, ये बात याद रखना। टफ वीक होने वाला है हेड, राइट। ये 1 वीक है, इसमें भी मैं कहूंगा 6 to 7 आवर्स आप GS को दे सकते हो। दिस इज द ओनली वीक इन योर प्रिपरेशन in the next 2.5 months where you don't have to give time to answer writing। जो मैंने आपको कहा 6 to 7 आवर्स में 2 घंटे आंसर राइटिंग के हैं, इस वीक वो चीज नहीं है। इस वीक आप कंटेंट पढ़ सकते हो आराम से, इसके बाद ये चीज आपको, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 6 to 7 आवर्स में इसको कंप्लीट करो। अब आपने ये कंप्लीट कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते में यू विल बी एट अ स्टेज कि यार अब तो मैं, आई एम डन विद GS1, आई एम फुली डन। नो, इट वोंट बी द केस एंड आई नो इट। It can't be the case that in 1 week you are absolutely through with GS1. But now from the next week, you will have Write Smart on Mondays, Wednesdays and Fridays. Monday, Wednesday, Friday आपका Write Smart होगा और Tuesday, Thursday, Saturday आपका Laws होगा। अब आपने GS1 पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं what's going to happen in this answer writing component। यहां पर क्या होगा, आप मंडे आओगे, लेट्स से आई डू मॉडर्न हिस्ट्री राइट स्मार्ट विद यू। अब आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ चुके हो, आपने प्रीलिम से पहले भी एक दिन में रिवाइज किया होगा। लेट्स से टू नाउ इन दिस वीक यू टेक 4-5 आवर्स एंड जस्ट फ्लिप थ्रू स्पेक्ट्रम, एक बार एक ब्रॉड रिविजन आप कर लेते हो। यहां पर मैं आपके साथ 8 क्वेश्चन लिखूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो हम लिखेंगे। यहां पर फिर 9th को आप 5 क्वेश्चन लिखोगे लॉज में मॉडर्न हिस्ट्री के, राइट। आपने 13 क्वेश्चन लिख लिए, काफी रिवीजन हो जाती है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री याद आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ रिविजन प्रोसेस,
व्हेन यू राइट एन आंसर, व्हेन वी डिस्कस इट, व्हेन वी डिस्कस पॉइंट्स, मेरा काम है मैं पढ़ के आऊंगा स्पेक्ट्रम अच्छे से, ताकि हम और अच्छी रिविजन कर सकें, राइट? देन यू विल गिव टेस्ट लेटर, राइट? आप में से कई लोग प्राइम वर्जन में होंगे जिसमें टेस्ट भी हैं, आप टेस्ट भी दोगे। टेस्ट में अगर आप 10 क्वेश्चन लेट से मॉडर्न हिस्ट्री के और लिख रहे हो, तो आप 22 क्वेश्चंस तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिख के जा रहे हो, वहां पर 2 या 3 आने हैं, तो यू आर ऑलरेडी अ स्टेप अहेड, राइट? दिस इज व्हाट वी डू हियर। अब अगले दिन लेट से यहां पर होगा एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का, ऑन दिस वेंसडे एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का राइट स्मार्ट होगा, यहां पर उसका लॉज होगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर इट। तो ऐसे करके आपका जो टाइम है यहां पर आपकी रिविजन हो जाएगी। सो इन 1 वीक द आइडिया इज ट्राई एंड फिनिश एज मच ऑफ GS1 एज यू कैन। नाउ दिस इज रियल कॉम्पिटिशन। कई लोग आप में से स्मार्ट होंगे जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे कुछ पढ़ाई, और नहीं करी है तो कुछ लोग आप में से आज भी टाइम वेस्ट करोगे कि यार कट ऑफ क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कई लोग ये सेशन खत्म होते ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। नाउ दिस इज ऑन यू, राइट? यू डू GS1 इन 1 वीक, नेक्स्ट वीक राइट स्मार्ट एंड लॉज यहाँ पे चल रहा है GS1 का, जो बाकी टाइम है वहां आप GS4 पढ़ेंगे। अगेन राइट स्मार्ट एंड लॉज चल रहा है GS1 का, जो बचा हुआ टाइम है वहां पर आप GS4 पढ़ेंगे। तो ऑन द 8th of June you will see the lectures of GS4 on your portal. जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स GS4 के हैं आपको पीयूष सर के द्वारा वो लेक्चर्स 8th को मिल जाएंगे, जिस दिन आपका GS4 का टाइम स्टार्ट हो रहा है। इज द प्लान क्लियर? यहाँ पे राइट स्मार्ट लॉज हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का या GS1 का, ये जो येलो स्ट्रिप है, ये 2 वीक्स राइट स्मार्ट और लॉज हो रहा है GS1 का, और आप अपने टाइम पे पढ़ रहे हो GS4। फिर अगले 2 वीक्स क्या होगा, आप पढ़ रहे हो GS3, नेक्स्ट 2 वीक्स यू आर रीडिंग GS3, बट राइट स्मार्ट और लॉस चल रहा है GS4 का। क्लियर हुई बात? आई नो इट इज टफ, देयर इज नो डाउट दैट दिस इज प्रोबेबली द टफेस्ट टास्क दैट आई कैन हैव ऑफ यू, है ना? आगे शेड्यूल एक बार आपको दिखा देता हूं। फिर हम GS3 करेंगे, उसके बाद हम एसए करेंगे, फिर हम GS2 करेंगे। कंटेंट हम खत्म कर देंगे अपने साइड से ऑन 25 जुलाई। इसके बाद नो मोर कंटेंट, मेन से 1 महीना पहले कंटेंट खत्म। उसके बाद आंसर राइटिंग होगी, रिवीजन होगी। तो 25th इज योर टारगेट। वी आर ऑन 1st June, योर टारगेट इज 25 जुलाई। यू स्टिल हैव 1 month फॉर रिविजन। बहुत टाइम दे रहे हैं रिविजन के लिए, बहुत टाइम है रिविजन के लिए इसके बाद, ठीक है? अच्छा खासा टाइम है रिविजन के लिए। 21 से मेन स्टार्ट है। आप देखो खाली छोड़ा हुआ अगस्त, सिर्फ आंसर राइटिंग है या मेंस की सिमुलेशन है, टेस्ट वगैरह है। देखो मेंस के पेपर में भी यही होता है, यहां पर भी यही होगा। 3 महीने हैं। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट मंथ वेल। अगर जून अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर जून में बैकलॉग हुआ तो दिक्कत आएगी। जून में गिव इट एवरीथिंग, जितना टाइम लगता है, जितना एफर्ट लगता है लगा लो। इवन इन अ मेंस टेस्ट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन टू यू। मेंस का जब पेपर होता है ना सर, तो 3 घंटे का टाइम होता है, तो लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखो मेंस में, 3 घंटे में मैनेज करना है। ये 3 घंटे की बात ही नहीं है। आप पहले 1 घंटे में आप 615 मार्कर्स लिख लो, आपका हमेशा टाइम पे कंप्लीट होगा। पहले 1 घंटे में हम अच्छी हैंडराइटिंग में धीरे समझ के लिखते हैं। हम फर्स्ट डे से प्रेशर नहीं फील करते। हमारा जो एक काम करने का तरीका होता है ना, हम सबका ब्रेन ऐसे काम करता है, मेरा भी, यार दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क आई एम गोइंग टू डू एंड दिस इज टाइम। लेट्स से ये मेरा डेडलाइन डे है, यहां पर टाइम खत्म हो रहा है। लेट्स से दिस इज 21st of August। तो पता है मेंस प्रिपरेशन हमारी कैसी दिखती है, या हमारा जनरली भी काम कोई कैसा दिखता है? यहां पर आके हमें प्रेशर फील होना शुरू होता है, राइट? यू नो व्हाट दिस इज कॉल्ड इन हिंदी, आई एम नॉट रिपीटिंग इट। यहां पर वही होता है, जो ये पॉइंट है ना, यहां पे लगता है कि अरे अब तो, और फिर उसके बाद ये होता है, ये नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट योर प्रिपरेशन टू लुक लाइक दिस। आई वॉन्ट योर प्रिपरेशन
टू लुक लाइक दिस। फिर भी ये पॉइंट आएगा, बट डे 1 से एफर्ट करो। अभी आराम आराम से पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा कि आराम से अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो टाइम है, प्री हो गया, जरा देख लेते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। किसी ने कोई यूपीएससी को रैंट करते हुए वीडियो बना दी। आजकल एक वो नई जर्नलिस्ट आई है, उनको टीचर से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शोज हर एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। तो मैं वही कह रहा हूं आपको, ऐसे बहुत लोग आते हैं ये सारी बातें करने, आप इस पे फोकस करो, ठीक है। यू एंश्योर दैट फ्रॉम डे 1 यू पुट इन दिस लेवल ऑफ एफर्ट। ये स्पाइक अगर आ गया ना यहाँ पे, तो यू विल हैव इश्यूज हेयर। मेरे साथ हो चुका है मेंस में। 2021 मेंस में मुझे इतनी एंजाइटी हो गई थी कि मुझे एक थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा था फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस लेवल की एंजाइटी हो जाती है मुश्किल। तो यहां से स्टार्ट करो। देयर कैन नॉट बी अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर जून, जुलाई एंड ऑगस्ट। डे 1 इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज डे 80। उतना ही जोर लगाना है हर दिन, ठीक है। और ये बात याद रख लो, इधर उधर की बातें छोड़ो। आपकी लाइफ का लास्ट चांस है ये सोचो कि इफ आई डू दिस राइट, इसके बाद मुझे लाइफ में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी किसी चीज की। दिस इज योर आंसर टू एवरीबडी हु हैज डाउटेड यू। सो गिव इट एवरीथिंग फ्रॉम टुडे, डोंट वेट टिल टुमारो, ठीक है। तो हम 25 का टारगेट रखेंगे कि 25 को कंटेंट खत्म होगा 25 जुलाई को, उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, वन थिंग मोर दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज नंबर ऑफ टेस्ट। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि पहले आप स्टैंड अलोन में, क्या आप स्टैंड अलोन टेस्ट में उनको 2 hours 50 minutes में पूरा कर पा रहे हैं? इतने टाइम में आपको स्टैंड अलोन टेस्ट पूरे करने हैं। दैट मीन्स स्टैंड अलोन का मतलब है यू आर गिविंग 1 टेस्ट इन 1 डे। वहां पर एक दिन में एक टेस्ट नहीं होगा, वहां पर एक दिन में 2 टेस्ट भी होंगे। तो स्टैंड अलोन टेस्ट का टारगेट रखना है 2 hours 50 minutes। घर पे दो, सेंटर पे जाके दो, लाइब्रेरी में दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट अपना टाइम कम कर लो बस। जब ये अचीव हो जाए तो आपका टाइम अचीव हो गया है। दिस इज द फर्स्ट गोल। जब तक ये अचीव नहीं होगा तब तक आप एक दिन में एक टेस्ट दोगे। लाइक डोंट ट्राई टू गिव 2 tests at once till you achieve this. Once you achieve this, give 2 tests in 1 day. एंड प्रेफरेबली इन द सेम ऑर्डर। जैसे अगर आप सुबह GS1 का टेस्ट दे रहे हैं तो शाम को GS3 का मत दीजिए, शाम को GS2 का टेस्ट दीजिए। सुबह अगर GS3 का टेस्ट दे रहे हैं तो शाम को GS4 का टेस्ट दीजिए, जैसे वहां पर एक्चुअली मीन्स में होगा। एंड इफ यू डू दिस 2 in 1 day वाला काम आप जब कर पाते हो, एंड यू आर एबल टू डू दिस इन 3 hours each, लाइक 6 hours में आप ये कर लेते हो। इफ यू डू 2 simulations ऑफ दिस, योर मार्क्स इंक्रीज बाय +20 in means। अगर आप ये काम 2 बार कर लेते हो, right, you are able to simulate means by yourself twice, your marks will increase by +20. Let me just tell you one more thing, and this is probably the most important thing I can tell you. आप लोगों को इस टाइम पे, मुझे भी पता है आपको क्या लग रहा है और आपको भी पता है आपको क्या लग रहा है। I know that there might be some anxiety in your head कि यार ये कैसे होगा, how will I be able to complete this, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना कुछ पढ़ना है। There is only one solution to this, only one, and that solution is action. स्टार्ट तो करो, करना स्टार्ट करो। यू हैव द बेस्ट टीम टू हेल्प यू। इससे बेटर टीम आपको मिल नहीं सकती है मेंस में आपको हेल्प करने के लिए। सजल सर भी हैं, पीयूष सर भी हैं, वरुण सर हैं, एम पुरी सर हैं, हिमांशु खत्री सर हैं, आदित्य कालिया सर हैं, मैं भी हूं। यू हैव द बेस्ट टीम टू हेल्प यू, ठीक है। आप लेकिन स्टार्ट करो। आपने जो पहले पढ़ा है वो भी काम आएगा। मेंस वाले दिन सब याद आता है, और ब्लैंक शीट होती है तो स्पेस होती है, 4 ऑप्शन में आप कन्फाइंड नहीं होते, राइट। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट बॉल। कल मेरा ये काम है, ये वाले टॉपिक्स में खत्म करूंगा और बस आगे। ओवर प्लानिंग नहीं करनी। आपको मैंने प्रीलिम्स नेविगेटर में भी यही बोला है, आपको मैंने फाउंडेशन में भी यही बोला है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। डोंट थिंक ऑफ ब्रॉड स्कीम्स एंड ग्रैंड आइडियाज।
जस्ट वॉट यू हैव टू डू ऑन द नेक्स्ट डे. जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कौन कौन इस साल मेंस दे रहा है, उसका एक ग्रुप बना देंगे. आई विल टॉक टू यू एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई विल टॉक टू यू एंड आई विल कीप दैट ग्रुप ओपन कि आप मेरे से बात कर सकें एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू. ठीक है, बस एक बार रिजल्ट आ जाए तो हमें ईजी विजिबिलिटी हो जाएगी उस चीज की, है ना. टर्न इट इनटू एक्शन. स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे. आज का दिन आपके पास बचा हुआ है अभी, राइट, व्हाट, इट्स जस्ट 6 o'clock. आप टेक्निकली आज सोसाइटी के 2 टॉपिक्स करके सो सकते हो. आप अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आज पढ़ सकते हो. जितना होता जाए करते जाओ. एक बार में रिवाइज नहीं होगा, एक बार में नोट्स नहीं बनेंगे, बट जब आंसर लिखोगे अर्बनाइजेशन का तो समझ आएगा, हाँ यार ये चीज़ें मुझे समझ आनी थी. जब आंसर लिखोगे ग्लोबलाइजेशन का तो ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, राइट. कीप वर्किंग ईच डे, पुट इन एफर्ट. और ये बात याद रखना, जब भी एंग्जाइटी हो किताब खोल के पढ़ना बैठ जाओ. कोई और सोल्यूशन नहीं है. यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? आई नो डिफिकल्ट है यार, आई कैन फुली सिंपथाइज, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. अच्छा खासा मुश्किल पेपर है, बट हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे. जितना एफर्ट कर सकते हैं करेंगे. ठीक है, आई नो डिफिकल्ट है, आई नो एफर्ट लगेगा, बट ठीक है, वी डिड नॉट चूज एन ईजी पाथ फॉर आवरसेल्फ.